اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جو شخص تھوڑے پر کانے ہو وہ بادشاہ اور درویش دونوں کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب نے مجھ سے ناراض ہونے کے بعد مجھے کتا کہہ دیا۔ کچھ دن گزرے تو ان حاجی صاحب نے مجھے ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک کنگا تحفتاً بیچا۔ میں اپنے متعلق ان کی بات کو نہیں بھولا تھا۔ میں نے ان کا وہ کنگا ان کے سامنے زمین پر پھینک دیا کہ آپ مجھے کتا سمجھتے ہیں اور پھر یہ کنگا بطور ہڈی عنایت کرتے ہیں۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہوگا کہ آپ مجھے آئندہ اس برے نام سے یاد نہ کریں۔ اگر میں اپنی محنت سے حاصل کیا گیا سرکہ کھا رہا ہوں تو یہ اس حلوے سے بہتر ہے جو کسی کا ظلم برداشت کرنے کے بعد حاصل ہو۔ جو شخص تھوڑے پر کانے ہو وہ بادشاہ اور درویش دونوں کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں اپنے ساتھ آنے والے واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب نے ناراضگی میں مجھے کتا کہہ دیا، پھر کچھ دنوں بعد مجھے ایک کنگا بطور تحفہ بھیجا۔ میں نے وہ کنگا انہیں لوٹا دیا اور کہا کہ آپ مجھے کتا سمجھتے ہیں، بس یاد رہے کہ عزت نفس بڑی چیز ہے اور اپنی عزت و وقار کی حفاظت کرو۔ جو شخص تھوڑے پر کانے ہو وہ بادشاہ درویش دونوں کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ نیک تو ہوتے ہی اچھے اور قابل ستائش ہے۔ جس شخص نے سب سے پہلے کپڑے پر پھول کڑھایا اور انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنی وہ پرانے وقتوں کا مشہور بادشاہ جمشید ہے۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ اس نے بائیں ہاتھ کو یہ فضیلت کیوں دی کہ انگوٹھی کو دائیں ہاتھ میں پہننے کی بجائے اسے بائیں ہاتھ میں پہنا۔ جمشید بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ دائیں ہاتھ کو اس کے دائیں ہونے کی وجہ سے فضیلت دینا کافی نہیں ہے۔ افریدون کے بادشاہ نے چین کے نقاشوں سے کہا کہ میرے خیمے کے کناروں پر کڑھائی کرو۔ اے مرد عقل مند، بروں کو اچھا بنانے کی کوشش نہ کرو کہ نیک تو ہوتے ہی اچھے اور قابل ستائش ہیں۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں دائیں ہاتھ کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر کام دائیں ہاتھ سے شروع کرو تاکہ اس کام میں برکت ہو۔ اللہ عز و جل دائیں ہاتھ سے کام کرنے کو پسند کرتا ہے۔ نیز جو برے عقل مند ہیں انہیں اچھا بنانے کی جستجو نہ کرو، اور نیک تو ہوتے ہی اچھے ہیں اور تعریف کے قابل ہیں۔ درویش کی دعا سے نابینا کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ زمانے کے ظلم و ستم کا ستایا ہوا ایک درویش کسی امیر کے دروازے پر چلا گیا اور صدا لگائی۔ وہ امیر پرلے درجے کا کنجوس اور مغرور تھا۔ اس نے درویش کی صدا سنی تو بجائے اس کی کوئی مدد کرنے یا اسے کچھ خیرات دینے کے اسے جھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس امیر شخص کے ہمسایہ میں ایک غریب نابینا شخص رہتا تھا۔ وہ درویش اس امیر کے دروازے سے مایوسی کی حالت میں پلٹا تو اس نابینا شخص نے اسے اپنا مہمان بنا لیا اور جو کچھ اس سے ممکن ہو سکتا تھا وہ درویش کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس درویش کے ساتھ نہایت عمدہ اخلاق اور مروت کے ساتھ پیش آیا۔ درویش اس نابینا شخص کے اس حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوا اور اس کی بھلائی کی دعا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ نابینا شخص نے اس درویش کے ساتھ یہ سلوک کسی لالچ میں آ کر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اس کی خدا ترسی تھی۔ ایک وقت کا کھانا کھلانا کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، لیکن اللہ عز و جل کو اس کی یہ نیکی بے حد پسند آئی اور اس کے حق میں درویش کی دعا قبول ہوئی۔ اس نابینا کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی اور اس کی آنکھوں سے پانی کے چند قطرے ٹپکے، جس سے اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ جب شہر کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حیران رہ گئے، اور کچھ ہی دیر میں درویش کی کرامت کا شہرہ سارے شہر میں ہو گیا۔ جب اس بات کا علم اس مغرور امیر کو ہوا تو وہ حسرت سے اپنے ہاتھ ملنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ افسوس، یہ شہباز تو میرا تھا جو اس نابینا کے جال میں پھنس گیا۔ یہ نعمت تو میرے لیے تھی جو اسے مل گئی۔ اس نابینا ہمسائے نے جب اس مغرور امیر کی بات سنی تو کہا کہ یہ شہباز تجھے کیسے مل سکتا تھا جو حریص چوہے کی طرح دانت نگوں سے ہوئے ہے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک درویش کی کرامت بیان کرتے ہیں جو کسی امیر کے دروازے پر گیا تو اس نے اسے دھتکار دیا۔ پھر جب وہ درویش ایک نابینا شخص کا مہمان ہوا
और उस नबीना शख्स ने उस दरवेश की खिदमत की तो दरवेश ने दुआ की और इस नबीना की आंखों की बिनाई लौट आई। जब इस अमीर शख्स को इल्म हुआ तो वो पछताने लगा कि ये नेमत तो मेरे लिए थी। बस याद रखना चाहिए कि भलाई के कामों को इख्तियार करने में सबकत हासिल करो, और जब कोई अल्लाह अज़्ज़वजल का नेक बंदा तुम्हारे दर पर आए तो उसके साथ निहायत इज्जत व एहतराम से पेश आओ और उसकी खातिर मिदारत में कोई कमी न रहने दो कि वो बारगाहे इलाही में मकबूल है, और हो सकता है कि तुम्हें भी वो उसकी बारगाह में मकबूल बना दे। तुम बरोज़े क़यामत मुझ पर जन्नत का दरवाज़ा बंद नहीं करोगे। एक आदिल और खुदातर्स बादशाह अपनी रियाया के हालात से आगाही के लिए रात को बेस बदल कर गश्त किया करता था। एक दिन वो एक मस्जिद के पास से गुजरा तो उसने 2 दरवेशों को देखा जो सर्दी में कांप रहे थे। बादशाह उनके हालात से वाकफियत हासिल करने के लिए वहां रुक गया। एक दरवेश ने दूसरे दरवेश से कहा कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़वजल ने बादशाहों को भी बख्श दिया तो मैं अपनी कब्र से बाहर निकलने से इनकार कर दूंगा। ये कैसा इंसाफ हुआ कि दुनिया में भी वो ऐश करें और आखिरत की जिंदगी में वो जन्नत के हकदार बन जाएं। मैं हकीकतन कहता हूँ कि अगर हमारे मुल्क का बादशाह जो कि साले कहलाता है अगर जन्नत की दीवार के नजदीक भी आया तो मैं जूते मार मार कर उसका भेजा पुलपला कर दूंगा। बादशाह ने उन सर्दी से कांपते हुए दरवेशों की गुफ्तगू सुनी तो वहां से वापस लौट आया और अगले दिन उसने प्यादे भेजकर उन दोनों दरवेशों को दरबार में बुलाया और उन्हें इनाम इकराम से नवाजा और उनकी इज्जत अफजाई की। वो दरवेश इस हुस्ने सुलूक पर हैरान थे। एक दरवेश से रहा न गया तो उसने बादशाह से इस हुस्ने सुलूक के मुतल्लिक राजदारी से दरियाफ्त किया कि उनके साथ इस इज्जत अफजाई से पेश आने और इन्हें इनामो इकराम से नवाजने की क्या खास वजह है। बादशाह ने जब दरवेश की बात सुनी तो मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि मैं मगरूर नहीं हूं और ना ही उन लोगों में से हूं जो मिस्कीनों को हकारत की निगाह से देखते हैं। तुम्हें यह ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए कि तुम कयामत के दिन मेरे मुखालिफ होगे। मैंने इस दुनिया में तुमसे सुलह कर ली, अब उम्मीद है कि तुम बरोज़े कयामत मुझ पर जन्नत का दरवाजा बंद नहीं करोगे। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस शिकायत को बयान करते हुए कहते हैं कि ऐ साहिब इक्तिदार, तुझे चाहिए कि तू भी दरवेशों की खिदमत कर और इस सिला का मुस्तहिक हो जा कि तुझ पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, और जो दरवेशों की खिदमत करेगा वही जन्नत के मेवाजात का हकदार होगा। वजह बयान। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में एक खुदा तर्स बादशाह का किस्सा बयान करते हैं जिसने कुछ दरवेशों की गुफ्तगू सुनी जो सर्दी में कांप रहे थे और बादशाह को बुरा भला कह रहे थे। उस बादशाह ने उन्हें इनाम इकराम से नवाजा और कहा कि तुम बरोज़े कयामत मुझ पर जन्नत का दरवाजा बंद नहीं करोगे। बस याद रहे कि बेहतरीन हुक्मरान वही है जो इक़्तिदार में रहते हुए लोगों के मसाइल से बखूबी आगाह हो और उनके मसाइल हल करने में संजीदगी का मुजाहिरा करे। और अगर अल्लाह अज़्ज़वजल ने किसी को किसी पर हाकिम बनाया है तो उस पर लाजिम है कि वह अपने महकूम की इयानत करे और उसकी दिलजोई में किसी किस्म की कसर ना रहने दे। अल्लाह अज़्ज़वजल के घर देर है अंधेर नहीं है। एक बूढ़ा शख्स सुबह के वक्त भीख मांगने निकला और एक मस्जिद का खुला दरवाजा देखकर उसने सदा लगानी शुरू कर दी कि है कोई जो इस बूढ़े को खैरात दे। एक शख्स ने उसे देखा तो कहा कि ए अहमक, यहाँ कोई नहीं रहता जो तुझे खैरात दे। उस बूढ़े शख्स ने दरियाफ्त किया कि ये किसका घर है। वो शख्स कहने लगा कि ये अल्लाह का घर है। ये सुनकर उस बूढ़े पर वजदानी कैफियत तारी हो गई और वो कहने लगा कि अगर ये अल्लाह का घर है तो इसे छोड़कर आगे जाना बेवकूफ़ी है और यहाँ से खाली हाथ लौटना इससे भी बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं तो आज तक कभी अल्लाह अज़्ज़वजल के किसी बंदे के दर से खाली हाथ नहीं लौटा, तो फिर इस रब के घर से खाली हाथ कैसे लौट सकता हूँ। मैं तो उस वक्त तक सदा लगाता रहूंगा जब तक मेरा दामन मुरादों से भर नहीं जाता। ये कहने के बाद वो बूढ़ा शख्स मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गया और 1 साल तक वहीं बैठा सदा लगाता रहा और नौबत यहां तक पहुंच गई कि कमजोरी का गलबा उस पर छाने लगा। एक दिन इसी हालत में उसका दिल डूब रहा था कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए उसके पास आया और अभी उस बूढ़े में जिंदगी की कुछ रमक बाकी थी और वो खुश होकर कह रहा था कि जिसने भी सखी का दरवाजा खटखटाया वो कभी मायूस नहीं हुआ। अलबत्ता शर्त सिर्फ इतनी है कि सवाली का साबिर व शाकिर होना जरूरी है। वजह बयान।
حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بوڑھے شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس نے مسجد کا دروازہ کھلا دیکھ کر صدا لگائی اور پھر ایک شخص نے اس سے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس نے سنا تو اس پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور اس نے کہا کہ پھر اس گھر کو چھوڑ کر جانا بے وقوفی ہے، اور پھر وہ 1 سال تک اس مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہا۔ 1 سال بعد اس کے پاس ایک شخص آیا تو وہ بوڑھا صدا لگا رہا تھا کہ سخی کے در سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا، بس سوالی کا صابر و شاکر ہونا لازم ہے۔ بس یاد رہے کہ اللہ عز و جل کی سنت ہے کہ وہ کسی کو آزمائش کے بغیر انعام و اکرام سے نہیں نوازتا، شرط صرف صابر و شاکر اور استقامت کی ہے۔ اور داناؤں کا قول ہے کہ اللہ عز و جل کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی نیکی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دن یمن کے ایک شہر سنا کے جنگلوں میں سے گزر رہے تھے کہ وہاں انہوں نے ایک بوڑھے کتے کو دیکھا جس کے تمام دانت گر چکے تھے۔ وہ کتا شکار کرنے سے معذور تھا، اس لیے دوسرے جانوروں کے بچے پر گزارا کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اکثر بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے دیکھا تو اس پر بے حد ترس آیا، اور جو کھانا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تھا اس میں سے نصف اسے کھلا دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ نیکی کرنے کے بعد رونا شروع ہو گئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے جاتے تھے کہ اس وقت تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، لیکن خدا جانے کہ کل میرا حال کیا ہوگا۔ اگر میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ عز و جل کی عنایت اور اس کی مہربانی کا مستحق ٹھہرا رہوں گا، اور اگر میری رخصتی ایمان کے ساتھ نہ ہوئی تو میری حالت اس کتے سے بھی بدتر ہوگی، اور اس کتے کی حالت مجھ سے بہتر ہوگی کہ یہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ خزانے خدا کی عاجزی کامیابی کی ضمانت ہے، اور جنہوں نے عاجزی اختیار کی اللہ عز و جل نے ان کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی افضل کر دیا، اور ایسے لوگ خود کو کتے سے بھی زیادہ حقیر خیال کرتے ہیں۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بوڑھے کتے کو اپنے کھانے کا نصف کھلا دیا، اور اس نیکی کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ رونا شروع ہو گئے۔ بس یاد رہے کہ عاجزی اللہ عز و جل کو بے حد پسند ہے، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر ہم اپنی عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیک اعمال کرنا ہوں گے کہ ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ عز و جل کے ہاں نیکوں کا اجر نیک اور بروں کا اجر برا ہے۔ گوشہ نشینوں نے خود پر کتے کے دانت اور انسانوں کے منہ بند کر دیے۔ ایک بادشاہ کا برطرف وزیر درویشوں کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا، اور ان درویشوں کی صحبت نے اس پر کچھ ایسا رنگ چڑھایا کہ وہ اپنی اس حالت پر مطمئن ہو گیا۔ بادشاہ کا غصہ جب ختم ہوا تو اس نے وزیر کو طلب کیا اور اسے دوبارہ منصب وزارت پر فائز ہونے کا کہا۔ اس وزیر نے وزارت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھے تیری حکومت میں مشغول ہونے سے بہتر اپنی معزولی لگتی ہے۔ گوشہ نشینوں نے خود پر کتے کے دانت اور انسانوں کے منہ بند کر دیے، کاغذ پھاڑ دیے، قلم توڑ دیے، اور اعتراض کرنے والوں کے ہاتھ اور زبان سے بچ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایک عقل مند وزیر کی ضرورت ہے جو تو ہے، اور تو ہی امور مملکت میں تدبیر سے کام لینے والا ہے۔ اس معزول وزیر نے جواب دیا کہ عقل مند وہی ہے جو ان کاموں میں مبتلا نہ ہو۔ ہما تمام پرندوں سے اس وجہ سے بہتر ہے کہ ہڈیوں پر گزارا کر لیتا ہے، لیکن کسی دوسرے پرندے کو تنگ نہیں کرتا۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں ایک وزیر کا قصہ بیان کرتے ہیں جسے بادشاہ نے برطرف کر دیا تو وہ درویشوں کی صحبت میں چلا گیا، جہاں اس پر درویشی کا رنگ غالب آ گیا۔ بادشاہ نے اسے دوبارہ عہدے پر بحال کرنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ خودداری اور عزت نفس ایک قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس وزیر نے بادشاہ کو جواب دیا کہ عقل مند وہی ہے جو دنیاوی اشغال میں مبتلا نہ ہو اور اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اگر تمہاری ذات کسی کے لیے باعث نقصان ہے تو یقیناً تمہارا انجام بخیر نہ ہوگا۔ میں اپنے غلیظ باطن کی وجہ سے
शर्मसार हूं। एक बुजुर्ग की महफिल में तारीफ की जा रही थी और उनकी खूबियां बयान करने में लोग मुबालगे से काम ले रहे थे। उन बुजुर्ग ने जब अपनी तारीफें सुनी तो फरमाया कि मन आनम कि मन दानिम, यानी मैं अपने आप को खूब जानता हूं और जो शख्स मेरी खूबियां बयान करता है वो मुझे खूब सताता है, और तुम सिर्फ मेरे जाहिर को जानते हो जबकि मेरे बातिन के मुतल्लिक तुम्हें कुछ इल्म नहीं। मैं दुनिया की नजर में तो अच्छा हूं मगर मैं अपने गलीज बातिन की वजह से शर्मसार हूं। मोर अपने नक्शो निगार की वजह से तारीफ के लायक समझा जाता है मगर वो जब अपने पांव देखता है तो शर्मसार हो जाता है। वजह बयान। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस शिकायत में एक बुजुर्ग का किस्सा बयान कर रहे हैं जिनकी तारीफ की जा रही थी, तो उन्होंने जवाबन फरमाया कि मैं खुद को बेहतर जानता हूं, बस याद रहे कि जो लोग अपनी तारीफ सुनकर खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं ये उनके नफ्स का धोखा है, और दूसरों की तारीफ पर फख्र करने के बजाय खुद को संवारने पर तवज्जो दो। जो बुराई का बीज बोए और भलाई की उम्मीद रखे वो अपना वक्त फजूल बर्बाद कर रहा है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं हजरत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर जामिया मस्जिद दमिश्क में मोतकिफ हुआ। एक अरबी बादशाह जो कि अपने जुल्म और सितम में मशहूर था वो वहां आया और नमाज पढ़कर अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में यूं गोया हुआ कि फकीर व बादशाह सब इस दर के गुलाम हैं जो बड़ा मालदार है। वो बादशाह फिर मुझसे गोया हुआ कि आप बुजुर्ग लगते हैं और अल्लाह अज़्ज़वजल से आपका ताल्लुक खास है, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मुझे एक सख्त दुश्मन का सामना है, अल्लाह अज़्ज़वजल मुझे कामयाबी अता फरमाए। मैंने उससे कहा कि तुम कमजोर रियाया पर जुल्म करता है, अगर तू कमजोर रियाया पर रहम करे तो फिर तुझे ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ताकतवर पंजे से मस्कीन का पंजा तोड़ना संगीन गलती है, और जो गिरे हुओं पर रहम नहीं करता वो उस दिन से डरे जब वो खुद गिरेगा, फिर उसे उठाने वाला कोई नहीं होगा। जो बुराई का बीज बोए और भलाई की उम्मीद रखे वो अपना वक्त फजूल बर्बाद कर रहा है। कान खोल कर सुन, मखलूक से इंसाफ कर, और अगर आज तूने इंसाफ न किया तो कयामत के दिन तेरे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा। इंसान एक दूसरे के आज़ा हैं क्योंकि वो असल में एक ही है। एक उज़्व तकलीफ में हो तो सारे जिस्म में तकलीफ होती है। अगर तू दूसरों की तकलीफ से लापरवाह है तो तू इस काबिल नहीं कि तुझे इंसान कहा जाए। बेशक जालिम की तौबा कबूल ना होगी। वजह बयान। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या बयान करते हैं कि वो दमिश्क में हजरत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम की कब्र पर मोतकिफ थे, तो एक अरबी बादशाह जो अपने जुल्म और सितम में मशहूर था उसने आप रहमतुल्लाह अलैह से दुआ की दरख्वास्त की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे नसीहत करते हुए फरमाया कि तू जालिम है और रियाया पर जुल्म करता है, तू बुराई का बीज बोकर भलाई की उम्मीद रखता है। अगर तू इंसाफ से काम लेगा तो कल तुझसे भी इंसाफ किया जाएगा। बस याद रखो कि जालिम जो आज ताकतवर होकर जुल्म के बाजार गर्म कर रहे हैं, कल जब अल्लाह अज़्ज़वजल उन्हें अपनी गिरफ्त में लेगा तो फिर उनको बचाने वाला कोई ना होगा। अभी भी वक्त है कि वो तौबा करें और मजलूमों की इयानत करें। मखलूक की तकलीफ को दूर करने का इनाम। एक शख्स ने खजंद के अमीर को ख्वाब में देखा कि वो बहुत उम्दा हालत में है और जन्नत के बागों में सैर कर रहा है। उस शख्स ने उस अमीर से इस मुकाम के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उस अमीर ने जवाब दिया कि मुझे अपनी और तो कोई नेकी याद नहीं बजुज़ इसके कि मैंने एक मर्तबा एक यतीम के पैर से कांटा निकाला था। अल्लाह अज़्ज़वजल को मेरी वो नेकी पसंद आ गई और मेरी वो नेकी बारगाह इलाही में मकबूल हो गई, जिसके बायस मुझे ये मुकाम अता किया गया। वजह बयान। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस शिकायत में खजंद के अमीर का किस्सा बयान कर रहे हैं कि जो एक यतीम के पैर से कांटा निकालने की वजह से मरने के बाद जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हमें चाहिए कि हम भी मखलूक की तकलीफ को महसूस करें, और अगर हम उनकी तकलीफ को रफा करने की कुदरत रखते हैं तो उसे इस तकलीफ से निजात दिलाएं। अपनी किसी अदना सी भी नेकी को मामूली न जाने कि शायद यही नेकी बारगाह इलाही में मकबूल हो और हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए।
किसान की तलखदार बातें। मुल्क गौर का बादशाह निहायत जालिम और लालची था। वो गरीब किसानों के गधे बेगार में पकड़वा लेता और उन गरीबों को उनके सहारे से हमेशा के लिए महरूम कर देता था। इन गधों को मौत ही मुशक्कत से निजात दिलाती थी। एक मर्तबा ये जालिम बादशाह अपने साथियों के हमरा शिकार के लिए गया तो उनसे बिछड़ गया। ये जालिम बादशाह भटकता हुआ एक गांव में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक किसान अपने मोटे ताजे गधे की टांग तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस किसान का ताल्लुक कुर्द कबीला से था और शक्लो सूरत से वो कोई मुअज़्ज़ज़ दिखाई देता था। बादशाह ने उसकी इस हरकत पर हैरानगी का इजहार करते हुए उससे दरियाफ्त किया कि तू इस गधे पर जुल्म क्यों कर रहा है। किसान ने जवाब दिया कि क्या तूने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं सुना कि उन्होंने कश्ती के तख्ते उखेड़ दिए थे। बादशाह बोला कि सुना तो है, लेकिन उसका गधे की टांग तोड़ने से क्या ताल्लुक। किसान ने कहा कि हमारे मुल्क का बादशाह बहुत जालिम है और वो गधे बेगार के लिए पकड़ रहा है। जिस तरह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के तख्ते उखेड़ कर उसे ऐबदार बना दिया था, इसी तरह मैं अपने गधे को ऐबदार बना रहा हूँ। फिर उस किसान ने बादशाह की खूब बुराइयां की और उसे इल्म न था कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वही बादशाह है। बादशाह को उस किसान पर बहुत गुस्सा आया, मगर वो सिर्फ इस वजह से खामोश रहा कि इस वक्त वो तन्हा था। अगले दिन जब बादशाह के सिपाही उसे तलाश करते हुए उस गांव पहुंच गए, बादशाह जब खाने से फारिग हुआ तो उसे किसान का ख्याल आया। उसने अपने सिपाही भेजकर उस किसान को गिरफ्तार करवा दिया। किसान को मालूम हुआ कि वो जिसके सामने बादशाह की बुराइयां करता रहा वो बादशाह खुद था, तो वो जान गया कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है। लेकिन मौत के खौफ से वो हरासा न हुआ, बल्कि इस यकीन ने उसके अंदर मजीद जुर्रत पैदा कर दी। किसान ने सोचा कि अब जब मरना ही है तो क्यों ना इस जालिम को मजीद सुनाऊं। उसने बेखौफ होकर बादशाह से कहा कि तेरे खुशामदी वजीरों ने तुझे तेरे मुतालिक जो कुछ बताया है वो दुरुस्त नहीं और पूरा मुल्क तेरी इस खुदगर्जी और जुल्म की वजह से परेशान है और हर शख्स तेरा जिक्र बुरे अल्फाज में करता है। इस किसान की बातें अगरचे तलख थीं, लेकिन चूंकि वो सच्ची थीं, इसलिए बादशाह पर उनका बेहद असर हुआ और उसके दिमाग से बर्बरियत का भूत उतर गया और उसने उसी वक्त तौबा की और इस किसान को इनामो इकराम से नवाजा। वजह बयान। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस शिकायत में एक किसान की तलखदार बातें बयान कर रहे हैं जो उसने बादशाह वक्त से की। बादशाह ने उसकी इस बेअदबी पर उसे कत्ल करने का हुक्म जारी किया। किसान ने सोचा कि उसने मरना ही है, तो उसने बेखौफ होकर बादशाह से कहा कि तेरे खुशामदी वजीर तुझे सब अच्छा बताते हैं। मेरी बातें अगरचे तल्ख हैं, मगर हकीकत यही है कि तू मुल्क का इंतजाम इंसिराम दुरुस्त नहीं चला रहा। बादशाह को किसान की बातों का असर हुआ और उसने तौबा की कि वो आइंदा अवामुन्नास की फलाह बहबूद के काम करेगा। बस हक बात कहते हुए किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं करना चाहिए। अगर मखलूक की जानिब से कोई तकलीफ आए तो परेशान ना हो। ईरान के एक शहर नेशापुर और अफगानिस्तान के एक शहर हरात के दरमियान एक इलाका था, जहां के बादशाह को अपने एक वजीर जो कि शरीफुन नफ्स और जाहिर बातिन में बादशाह का खैर ख्वाह था, उसकी कोई हरकत अच्छी ना लगी। बादशाह ने उस वजीर को जुर्माना किया और उसे सजा भी दी। बादशाह के तमाम वजीर और मुशीर उस वजीर के मुतल्लिक जानते थे और उसके एहसानात से भी वाकिफ थे। उसके साथ निहायत नरमी का बर्ताव करते रहे और उसे सजा तो दूर की बात, कभी झिड़का भी नहीं। अगर दुश्मन से सुलह करना चाहते हो तो कभी पीठ के पीछे वो बुराई भी करे तो उसके सामने उसकी तारीफ करो, और अगर वो कड़वी बात मुंह से निकालता है जिसका नुकसान भी है और तुम उसकी वो कड़वी बात सुनना नहीं चाहते तो उसके मुंह को अपनी बात से मीठा कर दो। बादशाह की जानिब से लगाए गए कुछ इल्जामात से वो वजीर बरी हो गया, मगर कुछ इल्जामात अभी ऐसे थे जिनकी सजा उसे दी गई और उसे कैद खाने में कैद कर दिया गया। उस वजीर को किसी दूसरे मुल्क के बादशाह ने खुफिया खत लिखा कि तेरे मुल्क के बादशाह ने तेरी कदर न की, अगर तू बेहतर जाने तो हमारी जानिब देख, हम तुझे सर आंखों पर बिठाएंगे और वो इज्जत देंगे जिसका तू हकदार है। हम तेरी आमद के मुंतजिर हैं और हमें इस खत का जवाब जल्दी देना। वजीर ने वो खत पढ़ा तो उसे खतरे का एहसास हुआ। उसने कागज की पुश्त पर मुख्तसर जवाब लिखकर वो खत लाने वाले को खत वापस भेज दिया कि अगर इस खत के मुतालिक बादशाह को इल्म हो गया तो कोई फितना न उठ खड़ा हो। मुतल्लिकीन में से कुछ लोगों ने इस बात की खबर बादशाह को कर दी कि उस वजीर ने दूसरे ममालिक के बादशाहों से खत व किताबत शुरू कर दी है।
बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने इंक्वायरी शुरू करवा दी। उन कासिदों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो वो खत लेकर आए थे। जब उस खत और वजीर के जवाब को पढ़ा गया तो वजीर का जवाब लिखा था कि आपका हुस्न ज़न मेरी हैसियत से ज्यादा हो गया है। मेरे लिए आपकी इस पेशकश को कबूल करना मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं सारी जिंदगी इसी बादशाह के टुकड़ों पर पला हूँ। अगर इनके दिल में मेरे लिए कोई मामूली रंजिश भी पैदा हो गई है तो मैं उनकी गुज़िश्ता तमाम नेमतों को कैसे बुला सकता हूँ और उनसे किस तरह इतनी बड़ी बेवफाई कर सकता हूँ। जो सारी जिंदगी मुझ पर मेहरबान रहा, अगर वो मुझ पर सख्त भी हो गया तो कोई बात नहीं। बादशाह ने जब उस वजीर का जवाब पढ़ा तो बहुत खुश हुआ और उसे कैद खाने से रिहाई दिलवाकर इनाम इकराम से नवाजा और माजरत करते हुए कहा कि मैंने तेरे साथ ख्वामखा जुल्म किया। वजीर ने कहा कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था कि मुझे कुछ तकलीफ पहुंचे। ये अच्छा है कि वो तकलीफ आपके जरिया से आई और आपके मुझ पर एहसानात बेशुमार हैं। दानाओं का कौल है कि अगर मखलूक की जानिब से कोई तकलीफ आए तो परेशान ना हो, इसलिए कि मखलूक से राहत नहीं पहुंचती। दुश्मन और दोस्त का फर्क अल्लाह से जानो, क्योंकि दोनों के दिलों से अल्लाह वाकिफ है। तीर अगरचे कमान से ही निकलता है, मगर अक्लमंद उसे चलाने वाले की जानिब ही समझेगा। वजह बयान। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस शिकायत में एक वजीर का किस्सा बयान करते हैं जिससे बादशाह वक्त नाराज हो गया और उसे कैद खाने में डाल दिया। एक दूसरे मुल्क के बादशाह ने उस वजीर को खत लिखा कि वो उसकी कदर करते हैं और अगर वो उस खत का जवाब मुस्बत दे तो वो उसकी रिहाई के लिए कुछ कर सकता है। वजीर ने उस बादशाह को इनकार कर दिया। जब उसके अपने बादशाह को खबर हुई तो उसने इस वजीर से उस खत के मुतालिक पूछा तो वजीर ने कहा कि वो उसके टुकड़ों पर पला है, वो नमक हरामी नहीं कर सकता। अगर उसकी जानिब से उसे कोई तकलीफ भी आती है तो वो उसे हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेगा। बादशाह उसकी बात से खुश हुआ और उसे कैद खाने से रिहा करने का हुक्म दे दिया। बस याद रखो कि जिससे तुम्हें आराम मुहैया आए, अगर उसकी जानिब से कुछ तकलीफ भी आ जाए तो तुम सब्र करो कि उसके एहसानात का बदला यही है। अल्लाह अज़्ज़वजल सब्र करने वालों को पसंद करता है और जब वह तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजता है तो उनमें से कुछ के वापस लेने पर तुम सब्र करो कि हो सकता है ये तुम्हारी आजमाइश हो और इस आजमाइश पर सब्र करने की वजह से तुम किसी बड़े इनाम के हकदार बन जाओ। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।